हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे उसकी मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा रोल है। जब मैनेजमेंट टीम सही तरीके से वर्क करती है, काम को डिसाइड करती है, काम को प्लान करती है, डिवाइड करती है और सब चीजें अपने टाइम पर की जाती हैं, तभी हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सही तरीके से ना किया जा रहा हो, कुछ भी डिसाइडेड ना हो, कुछ भी प्लान्ड ना हो, कोई भी क्लियर कट गाइडेंस ना हो, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, वो अपने गोल्स अचीव कर सकती है? तो ठीक सोचा आपने। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव ही नहीं कर सकती। और इसी बात को समझा एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर हेनरी फ्योल ने, और उन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल आज भी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय फ्योल। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल द टास्क्स शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। इट विल क्रिएट स्पेशलाइजेशन। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। मींस there should be balance between the authorities and responsibilities, and the employee should be given proper authority to fulfill their responsibilities. Third principle है principle of discipline. Principle of discipline states that not only the employees but also the managers should follow the rules and regulations of the organization and should follow the terms of agreement. Fourth principle है principle of unity of command. Means the employee should be headed by one boss only. Means they should not get instructions from multiple bosses. Then there is principle of unity of direction. Unity of direction principle states that all the projects should be headed separately by different bosses. Means one boss, one plan or one team. इसी तरह से principle of subordination of individual interest to general interest. Means whenever there is a situation of clash between the individual interests, then the organizational interest should be given priorities. Then there is principle of remuneration, which states that the employee should be given fair and just wages so that they may live comfortable life. Then there is principle of centralization and decentralization, which states that the decision-making authorities should be divided throughout the organization. High order decisions should be taken at the top level and routine level decisions can be taken by the lower levels of management. Then there is principle of scalar chain, which states that there should be a proper channel of communication. Means the information should be flown through a set path. Then there is principle of order, which states that all the things should be arranged properly. Everything should have a proper place and everyone should have a proper place to sit. Then there is principle of equity, which states that there should be no discrimination among the employees on any basis. Then there is principle of stability of tenure, which states that the employee should be retained in the organization for a longer period. They should not be changed very frequently. Then there is principle of initiative. Means the employee should be encouraged to take decisions. Then there is principle of esprit de corps. Means the managers should inculcate the team spirit among the employees. तो अब आपने समझ लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट बाय फ्योल, और इनको हम दोबारा से समझते हैं थ्रू एन एक्टिविटी।
आपको दिए जाएंगे 14 केसेस जहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बायोफ्यूल हैज बीन अप्लाइड, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, अ मैनेजर इज गिवन अथॉरिटी टू यूज द कंपनीज फंड्स अप टू अ सैंक्शनड लिमिट फॉर डिजाइनिंग द मार्केटिंग कैंपेन। यहाँ पर मैनेजर को मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और साथ में दी गई है उसको अथॉरिटी टू यूज द फंड्स अप टू अ सैंक्शनड लिमिट। मींस यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है? यस, यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉइज आर गिवन फ्री मील्स इफ दे वर्क ओवर टाइम एज पर द एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट की बातों को फॉलो किया जा रहा है, जो भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन से फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर यूज किया गया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The admin department is set on third floor in room number 304, where all the relevant files are categorized and arranged alphabetically. तो यहाँ पर सारी चीजें systematically arranged हैं। तो यहाँ पर अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Let's go to the next one. Rakesh, the sales manager, gives all the instructions to the team of salesmen. यहाँ पर सिंगल पर्सन एक पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इट मींस इट इज यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए नेक्स्ट वन, मिस्टर नूर, द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, अटेंड्स ऑल द मीटिंग्स विच आर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर एक सिंगल टाइप की एक्टिविटी एक सिंगल पर्सन के द्वारा हेड की जा रही है। इट मींस इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द कंपनी हैज स्टार्टेड टू कॉल अ वीकली मीटिंग विद ऑल द एम्प्लॉइज वेयर दे आर एनकरेज्ड टू गिव देयर सजेशंस। यहाँ पर एम्प्लॉइज से सजेशंस लिए जा रहे हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। इट मींस दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर मेहता हैज बीन डूइंग द वर्क ऑफ एनालाइजिंग द सेल्स डेटा and now he is specialized in giving valuable insights to meet the sales target. यहाँ पर मिस्टर मेहता एक काम को रिपीटेटिवली करने से उसमें परफेक्ट हो गए, स्पेशलिस्ट बन गए हैं। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज बीइंग यूज्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मिसेस रीना was offered a sum of rupees 1 lakh in return of her approval of a tender which is not supplying requisite quality of supply. She refused to give the approval. तो यहाँ पर आपने देखा कि मिसेस रीना के पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में आया क्लैश, और उसने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। इट मींस शी इज यूजिंग सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑल द एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग same type of work are given equal wages and treated without any biasness. Means same type of work are being given equal wages without any biasness, without any racism. It means here the principle of equity is being followed. Next, a business contributes to employees provident fund and ensures that the employees are retained in the business by providing them development opportunities एंड ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को एक स्टेबिलिटी दी जा रही है उनकी एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पर होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजर कॉल्स अ मीटिंग ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट एंड एप्रिशिएट द टीम फॉर द सक्सेस ऑफ द टास्क। यहाँ पर मैनेजर इज शेयरिंग द क्रेडिट ऑफ सक्सेस विद ऑल द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ Aspirate de corps. Next one, a manager offers the salary to the candidates based on his skill and responsibilities so that he may maintain a good standard of living. So here the principle of remuneration is being followed. Next, the launch of a new product
or opening a new branch type decision were taken in the head office by the board of directors, while hiring of contractual labor is done by the supervisors. तो यहाँ पर आप देख रहे हो decision making authority has been divided, means there is centralization for high end decisions and decentralization for routine level decisions. So here the principle of centralization and decentralization is being followed. Next one, Rahul always mails to his senior officer Mr. Ashok, who after going through it forward the mail to Mrs. Shalini, his immediate senior. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि communication flow कर रहा है through a set channel. तो here the principle of scalar chain is being followed. तो देखा आपने कि किस तरह से principles of management as given by Froel are useful in the real life also. They are not just theories. It means कि जो principles of management को जब हम use करते हैं अपनी life में तो हम better decisions ले पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट केवल अथॉरिटीज नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जरूरत है कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी की, और ये क्लैरिटी हमें मिलती है इन प्रिंसिपल्स से। अब आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आप इनमें से कौन से प्रिंसिपल को अपनी लाइफ के साथ सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने जब कोई डिसीजन लिया तो आपने इन प्रिंसिपल्स में से किस प्रिंसिपल का वहां पर यूज किया और किस तरह से उसने आपके डिसीजन को और ज्यादा इम्प्रूव किया। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रोल्स के प्रिंसिपल अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।